Hello friends, welcome to all of you. Today's topic of discussion is the type of reaction. The topic is very important, very interesting. Okay, each and every year they ask you reaction, like they give you the question, they ask you is it SN1 or SN2, E1 or E2. So total focus for the type of reaction जो है मेरा वो दो पे ही होगा, अपना एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर. सो टाइप ऑफ रिएक्शन जो है इट इज़ ऑफ मेनली 4 types. It is of mainly 4 types. ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं 4 types. See, we can have first addition reaction. We can have addition reaction, okay, and that is mainly found in unsaturated compound. And then second, elimination reaction. Third, substitution reaction. Fourth, rearrangement reaction. Okay, I hope you are getting the type of reaction. So we have mainly 4 type of reaction: addition, elimination, substitution, and the rearrangement. Now the today's lecture is totally based upon substitution reaction. In that too we have a 3 type of substitution. Okay, so we'll see that elimination is of your 3 types. We'll see in the another lecture, that is E1, E2, E1, CB. and substitution जो है it is nucleophilic substitution, it is electrophilic, and here I am writing nucleophilic, and then free radical. So we can have a 3 type of substitution: electrophilic, nucleophilic, and a free radical substitution. Now the topic of discussion is nucleophilic substitution. Now the nucleophilic substitution is of mainly 5 types: SN1, SN2, SNI, SNTH, SNAR. Unimolecular nucleophilic substitution, bimolecular nucleophilic substitution, internal nucleophilic substitution, TH tetrahedral, AR aromatic nucleophilic substitution. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो हमारा SN1 और SN2 के ऊपर ही होता है एज़ फार एज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ कंसर्न. ओके, सो विल स्टार्ट SN1 रिएक्शन डायरेक्टली. मैं 2 रिएक्शन लिखूँगा, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ. If I say tertiary butyl alcohol, if I have first, I have tertiary butyl alcohol and I am adding tertiary butyl alcohol. Right now I am here adding HBr. So the first step is a protonation, and then there is a loss of water molecule. We got something called as a carbocation, and then attack of nucleophile Br minus is happening, and we are getting something called as a tertiary butyl bromide. First reaction. If I take N-butyl bromide, N-butyl alcohol, N-butyl alcohol, and I am adding here PBr3, okay, and HBr. So it is going to give you 1 bromo butane. If you try to compare the difference, सर ये दोनों में difference क्या है, तो मैं बोलूँगा कि जो पहला वाला रिएक्शन है इसका जो स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा है. इट इज़ फास्ट इन द नेचर एंड दिस इज़ स्लो. अब मैं काइनेटिक्स लेकर आ गया यहाँ पे. तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जब मुझे डिस्कस करना है तो आप बहुत डिटेल में बात करेंगे उसकी काइनेटिक्स के बारे में भी. SN1 रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप का होता है.
SN2 is of one step reaction. SN1 always give you the intermediate, SN2 never give you intermediate. ठीक है. अच्छा, अब टर्शरी अल्कोहल जो है वो रिएक्ट किया HBr के साथ में और आपको अल्कोहल अल्काइल हाइलाइड मिल गया. तो लोगों ने क्या किया, दे फाउंड दैट what are the list of an alcohol which react rapidly with an HBr. So they came with two more examples, that is along with tertiary alcohol, benzyl alcohol and allyl alcohol. These three react faster. मतलब ये तीनों फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं. अलॉन्ग विथ टर्शरी ये दो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं. तो इसका मतलब ये फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो इसके अंदर होगा जो इनको प्रमोट कर रहा है कि आप रिएक्शन में फटाफट जाइए. तो ऐसा पाया गया द इंटरमीडिएट, द स्टेबिलिटी of intermediates promotes the speed of reaction. ठीक है. अभी तक मैंने ये डिस्कस नहीं किया कि कौन SN1 में जाता है, कौन SN2 में जाता है, और कैसे SN1 का प्रमोशन होता है, कैसे SN2 का प्रमोशन होता है रिएक्शन की. अगर मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में जैसे कि मैंने बता दिया, इंटरमीडिएट अगर आपका स्टेबल होगा तो वो स्पीड को बढ़ा देगा. ठीक है. और वो कैसे स्टेबल होता है, उसके पीछे का हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस होता है. ठीक है. हाँ, अब हम लोग बात करेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे इसका टर्शरी कार्बोकेटायन है, ये बेंजाइल है, ये अलाइल है. तो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटायन होने के बावजूद वो SN1 में नहीं जा रहा है, न तो SN2 में जा रहा है. अब हमारा ऐसा मानना होता है कि टर्शरी कार्बोकेटायन अगर आपको मिल रहा है, मतलब इन शॉर्ट जो केटायन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड होगा वो SN1 को प्रमोट करेगा. तो उसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं SN1 रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए. पहली चीज़ तो ये कार्बोकेटायन, ये तीनों में से कोई भी होना चाहिए. 2 डिग्री का कैसा है, वो दोनों में जाता है. तो यहाँ पे देखिए आप, अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया बाईसाइक्लो कंपाउंड, दिस इज द बाईसाइक्लो कंपाउंड. इफ़ यू ट्राई टू मेक इन दिस वे, सो आई कैन ड्रॉ इट हियर. यहाँ पे मैंने लगा दिया, मान लीजिए मैंने लगा दिया है ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने लगा दिया है OH, लगाता हूँ ब्रोमीन नहीं, OH, दोनों एक ही चीज़ है. अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा HBr. क्या ऐड करूँगा, HBr प्रोटोनेशन करके वाटर निकाल देगा. नाउ द Br माइनस विल बी अवेलेबल फॉर द अटैक. तो ऐसा पाया गया कि ये रिएक्शन में जाता ही नहीं है. नो SN1 और SN2. रीज़न बहुत सिंपल है. एक रूल है दैट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रेड्स रूल. कभी भी बाईसाइक्लिक सिस्टम आपको मिलता है तो जिस कार्बन पे रिंग फ्यूज़ हो रही है उस कार्बन को कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे लॉस ऑफ प्लिनैरिटी हो रही है. मतलब कार्बोकेटायन जो है ना आपका, पहली बात तो स्टेबल होना चाहिए, वेदर इट इज़ SN1 और SN2. SN2 में तो कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, बट एज फार एज SN1 की बात मैं कर रहा हूँ, तो दैट शुड बी स्टेबल. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये बंदा जो है टर्शरी तो दिख रहा है हमको, लेकिन ये SN1 को प्रमोट नहीं कर पाएगा बिकॉज दैट टर्शरी इज़ हाईली अनस्टेबल. ओके. अच्छा, अब मैं बात करूँगा आपका अलाइलिक सिस्टम. अलाइलिक सिस्टम में हमको कैसे पता चलेगा कि ये अलाइलिक सिस्टम है, तो मतलब मान के चलिए वो SN1 को ही प्रमोट करेगा, बट उसके अंदर भी प्रोडक्ट्स होंगे. मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो वो ज़रा समझते हैं. तो उसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल लूँगा, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अलाइलिक सिस्टम.
Now when you talk about the symmetrical allylic system, so we have a symmetrical allylic system, ये पहला लिस्ट है। दूसरी कैटेगरी हमारी को मिलेगी अनसिमेट्रिकल एलाइलिक सिस्टम। तो सिमेट्रिकल एलाइलिक सिस्टम और अनसिमेट्रिकल एलाइलिक सिस्टम दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं। एलाइलिक सिस्टम है तो वो SN1 को प्रमोट करता है बिकॉज उसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट उसमें भी दो ऑप्शन मिलते हैं प्रोडक्ट की बात अगर करनी है। सिमेट्रिकल एलाइलिक सिस्टम का अगर मैं बात करूँ, मैंने ले लिया साइक्लोहेक्सीन। क्या ले लिया भाई? साइक्लोहेक्सीन। और 3 नंबर पे लगा दिया OH, साइक्लोहेक्सीनॉल, सॉरी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया HBr। ये आपका सिमेट्रिकल एलाइलिक सिस्टम बनेगा क्योंकि ये प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन करने के बाद आपको ये फॉर्म करके देगा। सो देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। द मोमेंट देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम। सो नाउ दिस गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर सिस्टम। ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो आप क्या करिए, कहीं पे भी Br लगाए तो इसका प्रोडक्ट क्या है भाई? एक ही प्रोडक्ट है। दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट हियर वी आर एबल टू गेट। तो सिमेट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, वी कैन गेट ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे एक वर्ड सीखना है। वो वर्ड एलाइलिक वाला जो अनसिमेट्रिकल होगा तभी आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेता हूँ, ठीक है, इन दिस केस इफ़ यू डू, एक ये लेता हूँ, एक और लेता हूँ मैं, OH, दिस इज़ फर्स्ट वन, दिस इज़ सेकंड वन एंड थर्ड वन भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और लगा देता हूँ ब्रांच। ठीक है, हाँ। अब तीनों के अंदर मुझे ऐड करना है HBr। सिंपल सी बात है भाई, HBr आप ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप HBr ऐड करेंगे तो वो प्रोटोनेशन ही करेगा, तो इसका लोन पेयर जो है यहाँ अटैक करेगा, वाटर बन के निकल जाएगा। आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा मैं वो लिख रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इंटरमीडिएट कैन अंडरगो रेजोनेंस, यहाँ शिफ्ट करके आ जाएगा। ठीक है, अब मुद्दे की बात है, ज़रा उस पर आइए। मुद्दे की बात ये है कि Br अटैक कहाँ करेगा। तो अगर Br ने अटैक किया लास्ट में इधर पे, ठीक है, दिस इज़ 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन, इस पर अटैक किया तो 3 ब्रोमो हो जाएगा 1 ब्यूटीन। मतलब एक ही कंपाउंड का 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो ये जो है ये 80% है और ये जो है ये 20% है। तो भाई 80% और 20% हमको पता कैसे चल रहा है सर? अच्छा, अगर कोई पूछ ले ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है कि ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, दोनों के दोनों रेजोनेंस में जा रहे हैं और दोनों के दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाएंगे। सी, दिस इज़ प्राइमरी एज वेल एज अलाइलिक, दिस इज़ सेकेंडरी एज वेल एज अलाइलिक। तो बच्चा बोलेगा सर सेकेंडरी है और अलाइलिक भी है, तो मैं क्या करूँ? इसको बना देता हूँ एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दूंगा, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बट मैंने तो लिखा है 20% वो। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड द रीजियो सेलेक्टिविटी। क्या आता है? रीजियो सेलेक्टिविटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीजियो सेलेक्टिविटी नाम की चीज़ क्या होती है, ज़रा समझ लेते हैं इसको। रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस द न्यूक्लियोफाइल इज़ नॉट फ्री टू अटैक। उसको 2 स्पेस मिलता है, 2 रीजन मिलता है। ठीक है, एक होता है स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी होता है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी इज़ लाइक दिस ओनली। स्टीरियो सेलेक्टिविटी में 2 मिलता है। एक होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब वो एक ही प्रोडक्ट देगा।
रीजियो सेलेक्टिविटी, जहाँ पे सेलेक्टिविटी नाम की चीज़ आती है ना, तो वहाँ पे मतलब एक मेजर होगा और एक माइनर होता है। तो यहाँ पे रीजियो सेलेक्टिविटी आ जाती है। रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि ड्यू टू दिस मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे जो मिथाइल है उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे अटैक नहीं कर पा रहा है, एंड हियर दिस ऑन द टर्मिनल साइड पे योर अल्काइल, योर कार्बन विद द पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट, उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया। तो इसको हम लोग रीजियो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। तो ये रीजियो सेलेक्टिविटी का लॉजिक इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे। मैं अलॉन्ग विद SN1 आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन वही आता है। SN1 तो आप प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं बिकॉज वो सिस्टम ऑलरेडी मैंने दे दिया है। फिर भी बेंजाइलिक वाले के अंदर आपको एक एक्सेप्शन दिखाऊंगा मैं। इसके अंदर का क्या होगा भाई, प्रोटेंशन करके निकाल दीजिए, ये बन गया, बराबर है। फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका इंटरमीडिएट और इसका इंटरमीडिएट, दिस एंड दिस बोथ हैव अ सेम इंटरमीडिएट, बोथ हैव अ सेम इंटरमीडिएट। बात समझ में आ रही है? तो जब दोनों का इंटरमीडिएट सेम है उसमें भी फिर वही आ जाता है सेलेक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट। तो यही वाला बनेगा मेजर प्रोडक्ट। BR लगा दीजिए, इस पे आ जाइए, प्रोटोनेशन कर दीजिए। प्रोटोनेशन करके वाटर निकाल दिया मैंने। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, this is a positive charge. Now the nucleophile will try to attack at this particular carbon, but वो अटैक नहीं कर पाएगा, तो वो माइनर हो जाएगा। फिर ये यहाँ शिफ्ट करेगा और हमको जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर आपका जो है BR अटैक मार देगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, आई होप बात समझ में आ रही है। ये तो मैंने अलाइलिक सिस्टम के अंदर बात की है। इंटरमीडिएट मिला ना तो समझ जाना SN1 बन जाएगा और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब बेंजाइलिक का अल्कोहल मैं लेता हूँ और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा। अब आपको ध्यान से देखना है कि वो SN1 में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब कैसा मानना तो हमारा ये, अगर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है तो जाना ही चाहिए, बट लोग सिस्टम देख के ही बोल देते हैं ये जाएगा कि नहीं जाएगा। कैसा, ध्यान से देखिए। नो सी, अगर मैंने ले लिया है, दो एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल लूँगा मैं 4-methoxy बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे Cl लिखता हूँ मैं, बेंजाइल क्लोराइड है ये, 4-methoxy बेंजोइल क्लोराइड। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखूँगा यहाँ पे 4-nitro बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हमको बताना है कि कौन सा SN1 में जा रहा है, कौन सा SN2 में जाएगा। अब बच्चा बोलेगा सर दोनों जाएगा SN1 में क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटायन मिल रहा है। ठीक है, तो वो गलत बोल रहा है। ध्यान से देखो, ये वाला जो है ना ये SN2 में जाएगा, ये SN1 में जाएगा। कैसे जाएगा ध्यान से समझो, बिकॉज कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होल इन सोल थिंग है। सी इफ़ यू लुक एट द रेजोनेंस ऑफ फर्स्ट वन, अगर मैं पहले वाले का रेजोनेंस ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। Now this fellow is going to donate it electron। ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हमको क्या मिल रहा है फिर, वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम। यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से आपका दिस Cl विल लीव द सिस्टम, फिर डबल बॉन्ड हो CH3 पॉजिटिव। अब कोई न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस करके, या आपका Br माइनस, OH माइनस ही पकड़ लेता हूँ मैं,
तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ आएगा और ये इधर आ जाएगा. सो वी आर गेटिंग दिस. So this is happening via SN1. This is happening via SN1. क्योंकि इंटरमीडिएट जो यहाँ पे बनेगा ना वो स्टेबलाइज होगा. ये केस का अगर आपने रेजोनेंस देखा सेकंड वाले केस में, तो इसमें सब गड़बड़ हो जाता है. क्योंकि NO2 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा. जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर जाएगा. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट हियर, और ये इधर चला जाएगा. सो हमको यहाँ पे जो मिलेगा नया स्ट्रक्चर, हियर दिस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, CH2 Cl, दिस डबल बॉन्ड N, O नेगेटिव, O नेगेटिव. तो ये जो इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ हाईली अनस्टेबल, दैट इज़ हाईली अनस्टेबल. तो ये बनने की बदले क्या होगा पता है? न्यूक्लियोफाइल आएगा, OH माइनस आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा. दैट इज़ मोर प्रेफरेबल एज़ कम्पेयर टू दिस. तो ये जो है आपका SN2 में जा रहा है और ये आपका SN1 में जा रहा है. सो बेंजाइल कार्बोकेटायन, मतलब वो समझने की बात है कि सिस्टम बेंजाइल दिखा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो SN1 में ही जाएगा. आपको ये चेक करना है कि वो एक्चुअली स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा. अगर स्टेबलाइज होगा तभी आपको उसको SN1 में लेके जाना है, अदरवाइज लीव इट. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है. तो कार्बन स्केलेटन डिसाइड करते हैं SN1 में जाएगा कि SN2 में जाएगा. सो इफ़ इट इज़ लाइक टर्शरी अलाइल बेंजाइल, सो इट इज़ लाइक 100% तो नहीं बोल सकता मैं, बट 99% श्योर है, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी SN1 mechanism. The second factor is the solvent. Now the solvent should be polar and the protic. The solvent should be polar and the protic for SN1 mechanism. So the factors जो है हमारे पास मेनली 3 फैक्टर हैं. कार्बन स्केलेटन आपका, फिर दिस फैक्टर्स promoting SN1. That is, first is a carbon skeleton, second factor जो है आपका solvent है, and third factor is a living group. Third factor is a living group. तो अब मैं बात कर लेता हूँ solvent की. For SN1 solvent should be PP, polar protic. क्या होना चाहिए? polar protic. क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना पड़ता है, बिकॉज वो हाईली चार्ज्ड होता है. तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको पोलार सॉल्वेंट की ही ज़रूरत लगेगी. और SN1 खास करके आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, वाटर, ये सब में ही जाता है. और SN2 जो रहेगा वो DMF, एसीटोन एंड DMSO में चला जाता है. ठीक है. दैट इज़ व्हाट आई जस्ट टुक द नेम. वो सब आपके सॉल्वेंट थे. तो SN1 जो होता है वो सॉल्वेंट शुड बी PP, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए. एंड ट्रांजिशन स्टेट क्यों होना चाहिए पोलार आपका, ये वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो हाईली चार्ज्ड होता है, तो चार्ज को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है. तो अगर आपका सॉल्वेंट पोलार नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा. आर यू गेटिंग? तो जस्ट टू मेक इट स्टेबल वी आर हैविंग दिस. सो SN1 mechanism always gets promoted in the polar solvent and that protic. अब वो प्रोटिक जो है आपको उसको सॉल्वेट करने के लिए आता है, प्रोटॉन. थर्ड फैक्टर जो है लीविंग ग्रुप. नाउ अगर आपके पास वीकर बेस होता है ना, वीकर बेस जितना वीक बनते जाता है, दैट इज़ गुड लिविंग ग्रुप. दैट इज़ गुड लिविंग ग्रुप. SN1 रिएक्शन के लिए आपके पास लिविंग ग्रुप अच्छा होना ज़रूरी है. अगर मैं बोलूँ
मतलब इसमें कैसा, अगर लिविंग ग्रुप अच्छा रहेगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है और कुछ नहीं। अगर मेरे पास एग्जांपल है, मैंने आपका लिविंग ग्रुप, जैसे कि कोई बोलता है OH इज़ नॉट एट ऑल गुड लिविंग ग्रुप, OH इज़ अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो उसको टॉसिलेट करना पड़ता है या फिर उसको प्रोटोनेट करके वाटर निकालना पड़ता है, तो देन इट बिकम्स अ आपका गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है। नाउ इफ़ आई हैव टेकन दिस एंड आई हैव टेकन, आपने यहाँ पे NH3 लिया है एंड देन वी कैन हैव हियर Br। ठीक है। Now if you add here NaOH, it should be dilute, तो इसकी जो स्पीड होगी ना ये फास्ट होगी, दिस इज़ फास्टर एंड दिस इज़ स्लोअर, दिस इज़ फास्टर एंड दिस इज़ स्लोअर. So what I mean to say, if the living group is better, that fellow is promoting the SN1 mechanism, वो फटाक से चला जाएगा. अगर बच्चे के माइंड में आएगा कि यार ये तो लिविंग ग्रुप होने के बाद यहाँ पे तो प्राइमरी बन रहा है, यहाँ पे भी प्राइमरी बन रहा है, सही सोच रहा है बच्चा, गलत नहीं सोच रहा है. बट राइट नाउ आई एम डीलिंग विद द लिविंग ग्रुप. सो इफ़ द लिविंग ग्रुप इज़ बेटर, सो दैट फेलो विल undergo faster in the reaction and that will promote. ओके. एंड अभी अगली क्लास में मैं एलिमिनेशन रिएक्शन कवर करूँगा और ये बताऊँगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफ़ यू वांट टू प्रीडोमिनेट एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज SN1 एंड E1 जो है वो बेसिकली दोनों के लिए हम लोग डाइल्यूट कंडीशन रखते हैं. SN2 एंड E2 के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग कंडीशन रखते हैं. आपने सुना होगा बेसिसिटी एंड द न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों पैरेलली रन करती है. अगर कोई चीज़ अच्छा बेस होता है ना, स्ट्रॉन्गर इज़ अ बेस, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है. आर यू गेटिंग? अगर आप HBr लेते हैं, HI लेते हैं, HCl लेते हैं, H2SO4 से कराते हैं, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है. क्या डिफरेंस हो जाता है मैं अगले क्लास में उसको अगले लेक्चर में कवर करूँगा. ओके, आई होप यहाँ तक समझा होगा. थैंक यू.